بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ نو منتخب وزیراعظم میاں شہباز شریف کو وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیراعظم میاں شہباز شریف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ گارڈ آف آنر کی تقریب میں میاں شہباز شریف سے وزیراعظم ہاؤس کے دفتری عملے نے ملاقات بھی کی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ملک کے 23ویں وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نو منتخب وزیراعظم سے ایوان صدر میں حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سیاسی رہنما اور عسکری حکام نے بھی شرکت کی۔ ایوان صدر میں نو منتخب وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب کا آغاز قومی ترانے اور تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ چیئرمین سینٹ اور قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے شہباز شریف سے وزارت عظمیٰ کا حلف لیا۔ میں محمد شہباز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں تقریب میں مریم نواز، حمزہ شہباز، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری سمیت سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ شہباز شریف کے وزیراعظم منتخب ہونے پر مریم نواز جذباتی ہو گئیں۔ مریم نواز نے شہباز شریف کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی مختصر رخصت پر چلے گئے ہیں، جس کے سبب وہ نئے وزیراعظم شہباز شریف سے حلف نہیں لے سکے۔ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم بن گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 174 اراکین نے حق میں ووٹ دیا۔ شاہ محمود قریشی کو کوئی ووٹ نہیں پڑا۔ بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب میں شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ دھمکی آمیز خط پر پارلیمان کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے۔ کم از کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کہا پٹیشن میں بھی 1 اپریل سے 10% پینشن میں بھی 1 اپریل سے 10% اضافہ ہوگا، جبکہ بے نظیر کارڈ بھی بحال کیا جائے گا۔ رمضان میں سستا آٹا بھی فراہم کیا جائے گا۔ کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ماہانہ اجرت بڑھا کر 25,000 روپے ہم کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں۔ بے نظیر کارڈ کو دوبارہ لے کے آئیں گے اور اس کے اندر ہم صوبوں کے ساتھ مل کر پورے پاکستان کی بازاروں اور محلوں میں جو دکانیں ہیں وہاں پر رمضان پیکج کے حوالے سے سستا آٹا لے کے آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکومت خارجہ پالیسی کے خد و خال واضح کر دیے۔ کہتے ہیں کہ بھارت کے کشمیر میں 5 اگست کے اقدام کے بعد ہم نے کیا سنجیدہ کوشش کی۔ مودی کو کہتا ہوں آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت کے کشمیر میں 5 اگست کے اقدام کے بعد ہم نے کیا سنجیدہ کوشش کی۔ مودی کو کہتا ہوں آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں۔ آئیں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق طے کریں، اور دونوں اطراف ان غربت کو ختم کریں، غربت کو مٹائیں، روزگار پیدا کریں، ترقی دیں اور خوشحالی لے کے آئیں۔ شہباز شریف نے کہا پچھلی حکومت نے پاک چین دوستی کمزور کرنے کے لیے جو کیا وہ تکلیف دہ ہے۔ پاک چین دوستی لازوال ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ سی پیک کو پاکستان اسپیڈ سے آگے بڑھائیں گے۔ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ چین پاکستان کا ایک وفادار، قابل اعتماد اور امن اور دکھ اور سکھ کا ساتھی ہے چین۔ وزیر اعظم نے کہا چین نے پاکستان کا ہمیشہ ساتھ دیا، کوئی حکومت آئے یا جائے یہ دوستی برقرار ہے۔ یہ دوستی جو ہے یہ حکومتوں کے درمیان تو رہتی ہے، کوئی حکومت آئے یا جائے یہ دوستی لازوال ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں ممالک کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، لہذا کوئی کچھ کر لے
चीन की पाकिस्तान की दोस्ती कोई हमसे छीन नहीं सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि बरतानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाना है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। हमें बरतानिया जिसके साथ हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, और ये हकीकत है कि बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को हमेशा सपोर्ट किया। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नज़र हो गए, इख्तिलाफात हुए, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? वज़ीर आज़म ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज हमारा फर्ज है कि इख्तिलाफात की लकीर को खत्म करना होगा। PTI का कौमी असम्बली इजलास में शदीद शोर शराबा, वज़ारत उस्मा का इंतखाबी अमल का बायकॉट, कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़ा देने का ऐलान भी कर दिया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म का इंतखाब लड़ने से दस्तबरदार, कहा इजलास का हिस्सा बनना गैर मुल्की साजिश में शरीक होना है। के अरकान कौमी असम्बली इज्तिमाई तौर पर मुस्तफ़ी, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जज्बाती अंदाज में इस्तीफ़े का ऐलान। कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम को खुद ही खुद मुख्तारी और गुलामी में से एक रास्ते का इंतखाब करना होगा। उन्होंने PDM पर तंज करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इत्तेहाद गैर फितरी है, इनमें कोई नजरियाती हम आहंगी नहीं। इमरान खान कहते हैं क्या किया इमरान ने, क्या दिया इमरान ने। मैं कहता हूं आज तारीख इस बात की गवाह है कि इमरान ने कौम को खुददारी दी, एहतमाद दिया। जनाब वाला, मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान ने पाकिस्तानी कौम को सर उठा के जीने का दर्स दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने MKM से शिकवा करते हुए कहा कि MKM ने 3 साल 8 महीने पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा किया, ताहम अब ऐसा क्या हो गया कि इनके साथ बैठ गए। क्या ये कौम इस बात की गवाही नहीं देगी कि 3 साल और 8 माह मेरे MQM के मोअज़्ज़िज़ मेहमान सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं, ये मुसल्लत किए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर के बाद तमाम अरकान की जानिब से मुस्तफ़ा होने का ऐलान किया और बाइकआउट करके बाहर निकल गए। अगर इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रही तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पार्लियामेंट आमद पर गुफ्तगू, कहा इतवार को फाइलें बदलते रहे ताकि फर्द जुर्म ना लगे। एस्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि ये चेहरे कौम देखने को तैयार नहीं। सियासत अब शुरू हुई है, अब इनको पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है, और वो करप्ट लोग कल इतवार को ये फाइलें बदलते रहे, आज इन पे फर्द जुर्म ना लगे। ये 12-12 अरब रुपए के केसेस, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, फौज को सोचना चाहिए कि वो चेहरे जिनको कौम देखने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने इतवार के दिन अपनी ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेके फाइलें बदली। और मैंने कल प्राइम मिनिस्टर को कहा था, पहले भी मेरी बातें नहीं सुनी गई, कल तकरीबन ये फैसला था कि हम आज इस्तीफा देंगे। मैं अब भी कायम हूँ, 3 दिन के लिए उम्रे पे जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। और अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन करके वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का ट्वीट किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और मुबारकबाद देते हुए कहा, आपके वज़ीर आज़म मुंतखब होने की खबर पर बेहद मसरूर हूँ। यकीन है आपकी क़यादत में पाकिस्तान और तुर्की के बिरादराना ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान और तुर्की बाएतिमाद भाई हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद क़ुर्बत लाना चाहते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर पैगाम में शहबाज शरीफ
को पाकिस्तान का वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। ट्वीट में कहा, भारत दहशत गर्दी से पाक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज रख सकें और हम अपने लोगों की फलाह बहबूद यकीनी बना सकें। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली पर अमरीकी महकमा खारजा का किसी भी तबसरे से इनकार। कहा, पाकिस्तान के बारे में अमरीकी नज़रिए में तब्दीली नहीं, खुशहाल जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं। व्हाइट हाउस का ये कहना है कि पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, आइनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं, किसी एक जमात को दूसरे पर फौकियत नहीं देते। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म को टेलीफोन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तान से देरपा ताउन की कदर करते हैं और पाकिस्तान से मुख्तलिफ सतह पर राबिते में हैं। पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, आईनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं, किसी एक जमात को दूसरे पर फौकियत नहीं देते। नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर के टेलीफोन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। I don't have a prediction of a call at this point in time. I mean, obviously those are assessments made day by day, and especially after new leaders are elected, of course. We have a long, strong and abiding relationship with Pakistan, an important security relationship, and that will continue under new leaders. दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि हमारी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करेंगे। पाकिस्तान से देरपा ताल्लुकात काबिल कदर हैं। मुस्तकबिल में भी अमरीका और पाकिस्तान का आपसी ताउन जारी रहेगा। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी नजरिए में कोई तब्दीली नहीं आई। हम पाकिस्तान को खुशहाल और जमहूरी मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हमजा शहबाज की दरख्वास्त पे आज अब से कुछ देर बाद चीफ से लाहौर हाई कोर्ट इस अहम केस की समाअत करेंगे। अपनी दरख्वास्त में हमजा शहबाज का ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब करवाने के लिए असम्बली का सेशन बार बार कहने के बावजूद, बार बार रिक्वेजिशन भेजने के बावजूद अभी तक नहीं करवाया जा रहा और ऑलरेडी डिप्टी स्पीकर ने 6 अप्रैल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद पंजाब असम्बली को ताले लगाए गए और न किसी मेंबर को वहाँ पे नहीं जाने दिया गया और हमने अलामती तौर पे निजी जो होटल है वहाँ पे एक इजलास मुनक्कद करवाया और वहाँ पे जो भी मेंबर थे उसमें वोटिंग हुई और मैं वहाँ पे वज़ीर आला मुंतखब हुआ। वो एक अलामती कार्रवाई थी और कल जो है अदालती हुक्म पे सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी पेश हुए और उनका कहना था कि असम्बली का इजलास तोड़ फोड़ की वजह से पैदा हुआ। उसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने कहा कि अदालत में जमा करा दी है। उस तोड़ फोड़ के नतीजे में 6 अप्रैल को असम्बली का इजलास मुमकिन नहीं था। इजलास 16 तारीख को ही होना है और ये वाला डेड लॉक जो है अभी तक बरकरार है। मुस्लिम लीग नून में और काफ में वज़ीर काफ लीग का स्पीकर पंजाब है परवेज़ इलाही, उनका कहना था कि 16 अप्रैल से पहले हो नहीं सकते और हमजा शहबाज के जो वकला हैं आज़म मजीद तारर और उनके साथ जो दीगर वकला हैं उनका कहना था कि 16 अप्रैल से पहले ही होना चाहिए और अदालत ने कल दोनों पार्टीज को बाकायदा जो है लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मशावरत का आगाज़ कर दिया। नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा काबीना में शामिल होंगे। JUIF को 4 और MKM को 2 वज़ारत मिलने का इम्कान है। नई हुकूमत, नई काबीना, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा वफाकी काबीना में शामिल होंगे। JUIF से 4, MKM से 2 वज़रा लिए जाएंगे।
BNP मेंगल, ANP, जमहूरी वतन पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को एक एक वजारत मिलेगी। मोहसिन दावड़, असलम हुतानी, तारिक बशीर चीमा की भी काबीना में शमूलियत मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि नून लीग की जानिब से ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर, अहसन इकबाल, मरीम औरंगजेब, शाहिस्ता परवेज, राना सनाउल्लाह, मुर्तजा जावेद अब्बासी काबीना का हिस्सा होंगे। बिलावल भुट्टो का नाम वज़ीर ख़ारजा के लिए ज़ेर गौर है। पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी, जबकि सिंध का MQM से लिया जाएगा। JUI ने बलूचिस्तान या KP में से एक की गवर्नरशिप मांग ली है। मलिक अहमद खान, अता तारर, हनीफ अब्बासी को मुशीर बनाए जाने का इम्कान है। स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह और नवीद कमर के नाम फाइनल होना बाकी हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर BNP या BAP से लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद शहबाज शरीफ के खिताब से MQM पाकिस्तान नाराज़। वसीम अख्तर कहते हैं कि खिताब में मुआहदे का जिक्र होना चाहिए था। MQM से होने वाले मुआहदे के बायस आज शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। CM साहब की तकरीर में मेरी ख्वाहिश थी कि जो एग्रीमेंट फेडरल लेवल पे MQM के साथ हुआ है और सिंध लेवल पे जो हुआ है एग्रीमेंट, जिसकी वजह से आज ये महफिल सजी है, जिसकी वजह से हुकूमत गई है हमारे साथ वोटों के हवाले से MQM के, उसका ऐलान आज होना चाहिए था उन एग्रीमेंट्स का जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं, जो नून ने किए हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने किए हैं, जो आसिफ ज़रदारी साहब ने किए हैं, उसका भी ऐलान अगर PM साहब अपनी सीट में करते तो ज़्यादा बेहतर। यानी MQM को गिला है, लेकिन डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं खालिद मकबूल से कोई मसला नहीं है हमें, वो कोई और बात कर रहे थे आप PM साहब से? नहीं, उनको पर्ची भी भेजी थी इस हवाले से, मगर उन्होंने देखी नहीं, इसलिए मैंने मजबूरन खड़े होकर बात की। यानी आपको गिला है, MQM को गिला है? मुझे गिला है। थैंक यू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि नई हुकूमत का क़याम एक जमहूरी अमल है। पार्लियामेंट हाउस आमद पर सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या वो दोबारा सदर बन रहे हैं। इस पर आसिफ अली जरदारी का ये कहना था कि जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे पता चलेगा कि कौन सदर बनता है कौन नहीं। सदर आरिफ अलवी के मुमकिन इस्तीफे के हवाले से सवाल पर आसिफ जरदारी ने लाइल्मी का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने MQM से मुआहदे पर अमल दरामद का रोड मैप तश्कील देने के लिए वज़रा पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। हुकूमत सिंध की जानिब से तश्कील दी जाने वाली कमेटी में 3 सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, इम्तियाज़ शेख और एक मुशीर मुर्तज़ा वहाब शामिल हैं। वज़रा कमेटी MQM से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का रोड मैप तश्कील देगी और मुआहदे के तहत कानून साजी का मुसवदा तैयार करेगी। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर शहरियों को साफ पानी की फराहमी के हवाले से मसाइल बरकरार हैं। शहर के बेशतर इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं, जिससे शहरी ज़ेर ज़मीन आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं। तवक्कल टाउन में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं यासिर अजीम, उनसे जानते हैं। यासिर अजीम, बताइएगा किस किस्म की मुश्किलात का सामना है शहरियों को? जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान में साफ़ पानी का जो मसला है वो बरकरार है और शहरियों को साफ़ पानी की जो फराहमी है उसमें बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर, अगर बात की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स बनाए गए हैं वो काफ़ी अर्से से बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी जो आलूदा पानी है, ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है, जिससे बीमारियाँ भी फैल रही हैं। इस वजह से अगर बात की मौजूद है मुल्तान के इलाका तवक्कल टाउन पर, जहाँ पर सूरत हाल है कि कई अर्सा कबल से ये फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है, लेकिन इसे फंक्शनल नहीं किया जा रहा, चलाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ के जो अहले इलाका हैं उनका ये कहना है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो, ज़ेर ज़मीन जो आलूदा पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, खासतौर पर बच्चे मुतासर हो रहे हैं, हेपेटाइटिस B और C फैल रहा है। लेकिन सूरत यार की इंतजामिया इस वाले से दावे तो कर रही है कि शहर के तमाम जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उन्हें फंक्शनल किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ताकि शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। लेकिन जो अमली सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट कई अर्से से बंद हैं, जिसको चलाने के लिए किसी किस्म को इकदाम नहीं किए जा रहे, जो कि शहरियों के लिए इंतहाई परेशान कौन सूरत हाल है। शहरियों ने मुतालबा किया कि ख़ास तौर पर यहाँ के जो तवक्कल टाउन के मकीनों ने मुतालबा किया है हुकाम से कि फौरी तौर पर इस जो फिल्ट्रेशन प्लांट को फंक्शनल किया जाए, ताकि इस वजह से जो परेशानी है शहरियों को वो ख़त्म हो सके और उनको साफ़ पानी की जो फराहमी है वो मुमकिन हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
रुख करेंगे शहर कायद का और बात करेंगे गर्मी के ज़ोर की। तो गर्मी का ज़ोर शहर कायद में जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद 2 दिन तक मौसम गर्म रहेगा। आज शहर कायद का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। अप्रैल में हीट वेव का भी इम्कान है। मज़ीद जानेंगे यासिर सलीम से, जो कि PCHS में मौजूद हैं। यासिर सलीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची में गर्मी का जोर जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी जो है वो गर्म मौसम रहेगा और समंदरी हवाएं जो है वो शहर की जानिब काफ़ी कम रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जा सकता है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसकी जो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत होगा वो तकरीबन 40 डिग्री तक ये महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 25.5% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% से ज़ायद है, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो तब्दील होता रहेगा। हम आपको बताते चलें कि महकमा मौसमियात की जानिब से 15 अप्रैल के बाद जो है वो शहर के अंदर हीट वेव की प्रोडक्शन की गई है और मैक्सिमम टेम्परेचर कराची का 38 डिग्री तक जाएगा। जी शुक्रिया यासिर सलीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुजफ्फराबाद से अफसोसनाक खबर दें आपको। मुजफ्फरगढ़ में विरासती जायदाद हथियाने के लिए 2 शादीशुदा बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल में मुलविस दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके मौजा कड़ी अली मर्दान में 2 शादीशुदा बहनों को कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक शाजिया और नसरीन को उनके 2 सगे भाइयों ने कत्ल किया। दोनों भाई विरासत में मिली जायदाद बहनों से हथियाना चाहते थे। बहनों के इनकार पर तल्ख कलामी हुई और भाइयों ने फायरिंग करके दोनों बहनों को कत्ल कर दिया। मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं कि तालिबान हुकूमत की पहली कामयाबी। रूस ने मॉस्को में अफगान सफारतकार के तकर्रुर की इजाज़त दे दी। तालिबान की जानिब से जमाल गारवाल को मॉस्को में अफगान नाज़िमुल उमूर तैनात कर दिया गया है। अहम पेशरफ्त की काबुल में वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की है। रूस वो पहला मुल्क बन गया है जहां अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों को सिफारतकार तैनात करने की इजाज़त मिली है। तालिबान के हुकूमत संभालने के बाद से दुनिया भर ने अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रखे थे।